Hello everyone, welcome to the second video with Snohi and Rutvik. In our first video, we spoke about our current jobs as the area manager for Tanishq and the product manager for Fast Track. And in today's video, we'll be talking about our lives exactly before that. So the first year of TAS stints that we underwent, or the first year in TAS basically. But before we even begin, it seems like this will have to be a two-part series because there's just so many things that happened in that 1 year. So, preemptive declaration for that. Yeah, man, I completely agree. The first year of TES has to be amongst the top five happening years of my life for sure. इतनी सारी चीज़ें होती है and rightly so मतलब I think we should break it up into three parts. The first two parts should be our first month of induction program जहाँ पे the first part of it would be our stay at TMTC Pune and the second part would be our Bharat Darshan that happens and the third part would be the four stints that we do. So I think we can cover the first part of it, your first month of the induction program with TAS in today's video. Fair enough. In fact, I think we can start a little bit before that also, which is uh, when we boarded the plane to go to TMTC Pune. And for me, that flight was from Ranchi, and that is my first most distinct memory of being a part of this task batch. Because I remember sitting in the airport, eating my food, wondering if there'll be other people joining me. I thought that there might be because I saw in the group that couple of people had introduced themselves and they were also from nearby locations. So I was expecting to see them, but I couldn't recognize anybody at the airport. But then soon after, I remember two of my batchmates. They came, I think they were also suspecting that I'm also, feeling the same thing as them. But all of us are too shy to just walk up to someone and ask them if they're also here for the same reason. So they sat behind me and then they started discussing about uh, their interview experiences, and one of them started telling about his TAS summer internship because he had interned with TAS only over the summer, and that is when I turned back and introduced Hmm. myself. And yeah, that was I think that was my first sort of conversation with my batchmates. But from this day, I think my most distinct memory is that while we are in line, we've also now by now found a fourth batchmate, and we're Hmm. all standing in line waiting to board the plane. And we are an odd numbered batch, so Hmm. by now we also know that there are going to be rooms of two when we reach TMTC, Hmm. and the number of girls is odd numbered. So we know that, or we're speculating that there has to be one girl who gets a single room. Hmm. And the speculative list of roommates that was there was someone's name written with mine, and I searched for that person on the WhatsApp group, on Instagram, on Hmm. Facebook, on LinkedIn, and I couldn't find them anywhere. And I thought that surely this is not real, then surely this is a typo, this is just a placeholder that they've just put a name there, but because this person does not exist, because there is no trace of them on any social media. And yeah, so I thought that I'm going, and shared this with the three friends there. I told them that, I think that I might be the person that has the single room, and they all went with it, and everyone's telling me how jealous of me they are, how happy they are, but how much they wish that they were the person getting the single room there. So yeah, and when we reach there, it's quite late at night. I remember walking into my room and seeing a person. She was asleep, but I remember thinking that okay, then my roommate is very much real. And in fact, it turns out then that the fourth person in the line with us, one another friend who was joining us, she was the lucky one to get the single room. So yeah, this is something I remember very vividly. Just to summarize, एक one नजर is very real guys. हाँ. एंड सेकंड कि यार मतलब साइन ऑफ द टाइम्स दैट वी लिव इन कि अगर नहीं है किसी का इंस्टा प्रोफाइल या लिंक्डइन प्रोफाइल तो लोग मान लेते हैं कि एग्जिस्ट ही नहीं करते हो तुम तो. बट हाँ मतलब वेरी अंडरस्टैंडेबल. बट बिफोर वी मूव ऑन, डिड यू हैव एनी कॉन्टेक्स्ट ऑन कि टीएमटीसी क्या है, व्हाट आर यू गेटिंग इनटू, या पता था कि कहाँ जा रहे हैं? आई टेल यू व्हाई आई एम आस्किंग दिस, बट डिड यू हैव एनी आइडिया व्हाट इज टीएमटीसी और वुड यू लाइक टू स्पीक अबाउट इट? हाँ, मतलब थोड़ा सा आइडिया तो मुझे था बिकॉज माई डैड हैज ऑल्सो बीन टू टीएमटीसी इन द पास्ट एंड ही हैज स्पोकन सो हाईली ऑफ इट कि खाना इतना अच्छा होता है. टीएमटीसी इज जस्ट लाइक दिस ड्रीम campus that can exist, and you are so lucky to get an extended stay because usually TMTC में ऐसे senior management
ट्रेनिंग्स होते हैं. Hmm. अच्छा, so just to give a context on what TMTC is, it is the Tata Management Training Center in Pune, which is this pretty much like a college campus sort of a vibe that Hmm. they've built. There are individual cottages where people can live, and there's also a classroom setup. Matlab, there's an academic block of sorts, if you were to draw an analogy from a college campus. And it's very serene, it's very beautiful. Usually senior management trainings happen there, or Hmm. mid to senior management trainings, and even those are barely 2 to 3 days long. So I think only when the task batch gets to go there do they have anyone stay for 14 days, 15 days in such a big cohort, Hmm. for that kind of stretch. So and he was telling me everything about the cooks there, about the different gardeners there, about the flora and fauna there, the museum that is there. So yeah, I mean, I had some context on where I was going. Was that not the same for you? No, absolutely not. That is why I asked you because मेरा experience starting off was very different. मतलब I had no idea TMTC क्या है. The only two things that I knew was कि TMTC पुणे में है और TMTC में मुझे जाना है. Those were the only two things that I knew. Apart from that, I had no idea. I think full form भी मुझे गूगल करके ही पता चला था. बट हाँ, TMTC का कोई आइडिया नहीं था. आई जस्ट बोर्डेड द फ्लाइट फ्रॉम कैलकाटा टू पुणे एंड आई लैंड एट पुणे एयरपोर्ट एंड आई सी दस वन अदर गाय जो पुणे आ चुका है, लेकिन अब आगे क्या करना है उसको भी नहीं पता था. तो आई फिगर्ड कि वो भी शायद हमारे साथ ही होगा टेस्ट में. तो आई आस्क्ड हिम एंड इट टर्न्स आउट दैट ही वाज आल्सो अ टेस्ट बैचमेट ऑफ आवर्स. एंड हम मतलब वी स्टार्ट टॉकिंग, इंट्रोड्यूसिंग आवरसेल्व्स, बातें करते हैं एंड देन वी जस्ट से कि चलो अब आ गए हैं तो लेट्स गो टू TMTC. ऑटो करते हैं एंड ऑटो कैब करते हैं एंड देन लेट्स गेट आउट ऑफ द एयरपोर्ट एंड मूव. वी स्टार्ट गोइंग आउट ऑफ द गेट एंड आई विविडली रिमेंबर एक चीज़ जो हुई थी कि देयर वाज अ शॉफर हु वाज वेटिंग देयर विद द नेम कार्ड्स एंड वी हैड नो आइडिया कि दिस इज गोइंग टू हैपन. मतलब अगर थोड़ा सा भी आइडिया होता तो थोड़ा मैं लेयरिंग या कुछ कर लेता बिकॉज इट वाज सो ऑकवर्ड एंड इट वाज सो आउट ऑफ द ब्लू. एट दैट आई वाज मतलब ऐसे फ्रोजन फॉर अ सेकंड कि यार ये मेरा ही नाम लिखा है ना. मैंने 3 बार ऐसे पूरा पढ़ के स्पेलिंग चेक करके कंफर्म किया कि सही में मेरा नाम है ना, बिकॉज कंप्लीटली मतलब नो आइडिया. तो हाँ, मतलब वी वर गिवन अ कार एंड शॉफर्ड टू द कैंपस TMTC में. एंड अगेन सेकेंड पार्ट ऑफ योर स्टोरी कि मतलब यू गाइज न्यू कि क्या रूम सेटअप होगा, किसको सिंगल रूम मिलेगा. वी हैड नो आइडिया. आई थिंक वी वर द फर्स्ट वंस टू रीच Hmm. कैंपस. हमें बोला गया कि ये तुम्हारा रूम है, चले जाओ, और हम चले गए. हमें पता ही नहीं था कि ऐसा ऑप्शन भी है सिंगल रूम का. एंड आई थिंक हमने ही वो रूम एलोकेशन का फोटो वोटो लेके हाँ. व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला था सो दैट पीपल कैन सी. एंड हाँ. आई थिंक वहीं से फिर वो स्पेकुलेशन बढ़ गया होगा. Correct. बट Because no, but I also fully agree यार. ये जो so in many very legacy टाटा कंपनीज ये चीज बोली जाती है कि टैस वाले तो दामाद होते हैं ग्रुप के. आई थिंक दैट दामाद ट्रीटमेंट आई ऑल्सो फेल्ट, बिकॉज मेरे घर से एयरपोर्ट तक के लिए गाड़ी दी, then flight to of course देंगे, and then also the car from the airport to TMTC. I mean, maybe now we've gotten accustomed to this life, and it doesn't feel like that big a deal after spending some time in corporate. But when you're right out of college, it seems like a very big deal, क्योंकि कॉलेज में तो आप ऐसे मतलब लाइक शेयर ऑटो ले रहे हैं, चल के जा रहे हैं पैसे बचाने के लिए, जनरल में टिकट कटवा रहे हैं, and then suddenly the leg up where everything's paid for, there's a chauffeur driving you करेक्ट. around was थोड़ा सा टाइम लगा था टू गेट हाँ. यूज टू इट. Yeah, 100%. बट हाँ, मतलब यू गेट इनटू द कैंपस एंड लाइक यू सेड कि द कैंपस हैज सो मच हिस्ट्री ऑफ इट्स ओन. बिल्कुल यू कैन फील द ऑरा oozing out. And हाँ, and मतलब it also had its own set of rules and decorum that we had to follow. There were people who had been there with the institution for decades now, and interacting with them was also a very fond memory. I remember कि हमें lunch, breakfast, dinner, all the meals that we were served were very timely. अगर एक सेकंड भी लेट हो तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा. We had to cover ourselves completely, मतलब with full clothes, and our feet also had to be covered with complete shoes. You cannot wear loose footwear. तो मतलब these were some of the rules that we had to follow, but I think nobody mind, मतलब किसी को ऐसा लगा नहीं था कि यार क्या स्ट्रिक्ट है. हाँ. लगता ही है कि यार इस इंस्टीट्यूशन का इतना हिस्ट्री है, सो मच, मतलब सो मच हिस्ट्री इट होल्ड्स कि इतना तो मतलब बनता है, मतलब सो मच तो 100%. प्लस वही है यार कि आई थिंक एट दैट लेवल तो इट इज एक्सपेक्टेड ऑल्सो कि थोड़ा थोड़ा सा. बेसिक, हाँ, डिसिप्लिन डेकोरम मेंटेन हो. तो हाँ. वही आई डोंट थिंक एनीवन वुड माइंड इट, बट हम्म. हाँ, मतलब आई एग्री, किसी को ऐसे तो नहीं छुपा था. मतलब एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम लगा था टू गेट यूज्ड टू इट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग फेल इन प्लेस सून. हाँ. प्लस आई ऑल्सो थिंक कि बिकॉज इट इज सच अ मतलब
मतलब the air in TMTC is different. And if you go to Hmm. any college campus you'll realize this कि suppose you're in Bangalore and you go inside, I am Bangalore, अंदर की हवा अलग होती है. Same हाँ. for XLRI. If you are in Jamshedpur and you go inside XLRI, वो हवा अलग है. मतलब somehow it just feels different. Different. and Correct. and the magnanimity of walking into TMTC, I think is much greater than it was for me walking into Excel. But I also think कि वो इस वजह से भी हो सकता है कि, like at least for me it was the case Hmm. कि when I went into Excel I had this I had this thing running in my head um, कि अभी तक you might have been at the top of wherever you are coming from, but that here inside you are bang average. Hmm. मतलब everyone's the best here and they're coming from better pedigree, better backgrounds with better work experience, so on and so forth. So you've got to fight it hard to make something for yourself. But and that is why the weight of the legacy of Excel maybe did I matlab it wasn't something on my mind. Hmm. But with TMTC, when you walk into TMTC, by then you know that you have a job. You know that for the first year at least you just have to, go through with things. You just have to exist, and you'll be put in places, and you just have to make the best of them. ज़्यादा कुछ हमें ऐसे Hmm. actively करना नहीं है. So नहीं नहीं, this I agree यार. I think everyone had a very similar approach and mindset when they stepped hmm, into the campus. सबने वो जो time enjoy किया, I think it was symbolic of the feelings that you हंड्रेड spelled out. परसेंट 100%. ऑल्सो बिकॉज बहुत लोग एमबीए भी इसीलिए करने जाते हैं कि दिस इज द लास्ट लेग ऑफ हाँ, लाइफ वेर यू गेट टू एंजॉय लाइक लाइक somebody with no जो responsibilities. स्टूडेंट लाइफ कहते हैं, हाँ, हाँ वो मतलब. स्टूडेंट लाइफ की हाँ. एवरीथिंग टेकन केयर ऑफ, यू जस्ट हैव टू एंजॉय. एंड हम्म. with the MBA ending, that was a big, मतलब feeling weighing down on people कि now we have to go back to our adult lives. बट वो हाँ. जो एक 14 डेज का ब्रेक विंडो टीएमटीसी था. ने दिया है वापस की, अग्री. चलो वन मोर टाइम यू कैन लिव दैट हाँ. लाइफ वाज. 100% agree यार. बट हाँ, आई थिंक द मेन मोटिव ऑफ 5 ईयर इन टीएमटीसी वाज टू अटेंड द, मतलब काफ़ी जो सारे हमारे लीडरशिप सेशंस हुए थे विद सीईओज एंड एमडीज ऑफ डिफरेंट टाटा ग्रुप कंपनीज. आई थिंक some of the names that I remember was the CEO of Tata Steel had given us a talk. The CEO of Trent was there. The क्रोमा, CEO of 1MG, I think Tata 1MG CEO was there. स्टारबक्स, Starbucks, correct, yeah, Tata Quants. correct. Yeah, there were quite a few senior leaders. These are just the few that we remember off the top Yeah, of our heads, but there were many more, multiple leaders, correct. multiple leaders that came in. So there were these leadership sessions that were scheduled for the first 14 days, and in between these sessions, we would also have some generic, HR shindigs that would happen. वही corporate Correct. HR engagement activities वैसे. But out of these sessions, do you have any favorite session of yours or any favorite memory that came out of these? Yeah. I mean, I do have. I remember all the sessions, but if I'm to pick my favorite memories, I think Mr. Don Dungaji's session would be my most favorite because so again because Hmm. I've been in Jamshedpur, so I have a ton of context on JRD Tata. हमेशा Hmm. से ऐसे बोलते हैं different parts of the city will have many information about him. You will end up reading a ton of things about him. Um, तो it's not कि JRD's legacy is unknown. मतलब everyone Hmm. knows how much he has contributed to this country, to the building of this nation. But I think and उसके बाद ना, तो when there is a person that you're talking about जिनके बारे में इतना कुछ publicly available है, I Hmm. think I was initially expecting कि वो same ही stories बताएंगे वापस. But I was so pleasantly surprised and very touched कि it was totally not that. Matlab, Mr. Don Dungaji Hmm. narrated a bunch of incidents, most of which were very matlab, very private Yeah, moments that he had with JRD. And I think how someone's personality shines through when no one's watching them, and yet when they choose to do the right thing, matlab, that was very moving. I think also coupled with the fact that he was such a great orator. Matlab, correct. I 100%. really don't think I have seen somebody be such a good orator even on Yeah, YouTube. Matlab, let correct. alone matlab, me personally viewing them one on one. So I think that also just moved the emotions in the Hmm. room up by that much. So that is surely one session that I very distinctly remember. Matlab, Hmm. feeling very very moved because Hmm. matlab, at least I have this feeling, and I think many of us have this feeling at different points कि ठीक है मतलब great people are great, but they're also people only at the end of the day. Matlab, they're Hmm. humans like you and me. How different can they be?
बट कोई जब ऐसे इंसिडेंट्स नरेट करता Correct. है, एंड द वे इन विच दे ऑल्सो डिलीवर इट मेक्स यू थिंक कि नहीं यार, मतलब दे वर श्योरली बिल्ट स्लाइटली डिफरेंट, मतलब Fully agree. मतलब they're definitely not the same as the rest of us. So that is one memory. The other one I remember here is Mr. Venkatasalu was about to come. So, for Oh. context, he's the MD of Trent, and Hmm. Trent is the company that owns Westside, Zudio, Tata Star Bazaar, and also runs Zara in India. So, I don't know. In my head, here, I had made up this image that he is like the Anna Wintour of India. The fashion So icon. he's the absolute fashion icon of India, because your West Side, Zudio, Zara are all top Yeah. names. Matlab in Indian fashion, I think top Yeah, names. yeah. Um, so I was expecting the most jazzed up person coming and walking in like it was the Cannes red carpet. And I don't know, I think I had thought about it so many times कि वो मेरे दिमाग में तो reality बन गई थी कि ऐसा ही होने वाला है. And then when the session happens, the chillest, most relatable guy walks in a jeans and a shirt, and gives the craziest, matlab the sharpest presentation Yeah, of the yeah. entire lot. And I was just baffled कि यार, Yeah. but पता है मुझे ये भी लगा तब कि I think this is also very much मतलब indicative of western cultures versus Indian cultures, कि इंडिया में जो लोग इतने like top tier चीजें बना भी रहे हैं, like people who are building these companies that are operating at this scale and influencing fashion and culture at this level, Hmm. they are also like very normal and very humble people Correct. making it in life. Hmm. Matlab, possibly not the same thing as European designers or American designers, but I was absolutely floored. Matlab, I was so humbled that day yaar, कि अगर if somebody of this stature is also so simple and so um, down to earth, then I mean, hats off. But I think मुझे ये भी थोड़ा अच्छा लगा था कि I'm not somebody that likes to dress up, and in fact मतलब shopping is equivalent to the severest punishment I can imagine. तो मुझे इतना अच्छा लगा था कि अगर अगर ये भी इतने सिंपल ड्रेसअप करते हैं, then that is my defense against everyone that tells me that I need to shop and dress fancy. Peak validation. हाँ, peak validation. नहीं, but quite understandable यार. मतलब I also had a similar image in mind and it turned out to be completely opposite. But what about you? What all sessions did you enjoy the most? यार सेशंस तो आई डोंट थिंक आई रिमेंबर एज क्लियरली एज यू, बट कपल ऑफ मेमोरीज जो मुझे काफ़ी क्लियरली याद है कि वॉकिंग इन टू द क्लासरूम ऑन द फर्स्ट डे जब हमारा पहला सेशन होना था, इट वॉज एन अर्ली मॉर्निंग सेशन एंड हम ऑल मतलब ऑल ऑफ अस आर ऑल सूटेड अप perfectly dressed in crisp formals. मुझे लगा था कि क्लासरूम सेशन होगा, we would be seated in a arrangement and somebody would come and give us a talk and I enter, then it's it's a setup which is completely like a B school setup. Hmm. वहाँ पे वो लेयरिंग है, वो स्टेप्स पे अपने बेंचेस रखे हुए हैं जो बी स्कूल का वेल टाइप का स्ट्रक्चर होता है एंड हमारे नेम कार्ड्स तक रखे हुए हैं एंड आई वेरी क्लियरली रिमेंबर कि लोग आके सेकेंड डे से जल्दी ब्रेकफास्ट कर लेते थे ताकि अगर उनकी सीट बहुत आगे है तो थोड़ा इधर उधर करके पीछे चले जाएं. एंड आई रिमेंबर कि थोड़े से उसमें रेगुलर विक्टिम्स भी थे जो डेली जिनके साथ होता था. Hmm. तो दैट इज़ अ वेरी कोर मेमोरी दैट आई हैव फ्रॉम ऑल ऑफ दी सेशंस कि डेली वो रहता था सबको कि जल्दी जल्दी पहुंचना है, पहले क्लासरूम में पहुंचना है. But coming to sessions, I think one other session that I very clearly remember is the session by the CEO of Tata 1mg when Founder of. the founder of 1mg, when he spoke about how he started up the business in I think a decade back. Jab I think e-commerce was coming up in India at that time, he started an online pharmacy business, which is a very regulated field, and to start it at that point of time, matlab, shows that how ahead he was of time to think about it. And also the anecdotes that he told about how he went about the complete acquisition. What do you do when the biggest conglomerate in the country comes to the table to acquire you? Do you Hmm. sell or not sell? How do you fit into the group? How do you integrate? The thought process differences, the cultural differences, how do you iron that out? And it was a very very matlab, sharp session and very engaging as well. So I think that was also a very core memory for me कि ये session जो हुआ था हाँ. बहुत अच्छा लगा था मुझे सुन के, काफ़ी engaging था. मुझे तो यार इस सेशन से बस ये याद है कि ही वाज सच अ यंग गाय, मतलब हाँ. he was so young, he looked मतलब he looked pretty much the same age as us. He must have been what, मतलब barely 5-10 years older, and टेबल पे बैठे थे dangling his legs down, and so engaging and so I don't think he had a presentation as such yeah, also yeah, completely. yeah, he I don't think he had a presentation. He was just speaking to the हाँ. group, making it very conversational.
एंड वही है यार, मतलब एज इज जस्ट अ नंबर। मतलब Hmm. आई थिंक ये जो मतलब माई ओनली टेक अवे इसकी, तो फिर इतना हम लंबा क्यों लोगों से पूछते हैं कि शॉर्ट Hmm. टर्म प्लान, लॉन्ग टर्म प्लान, यू कैन डू एनीथिंग वेन एवर यू वॉन्ट टू। Hmm. मतलब इट नीड नॉट बी दैट यू हैव टू डेफर योर सक्सेस टिल यू आर 55। बट हाँ, Yeah. आई रिमेंबर बीइंग वेरी एंथ्रॉल्ड बाय कि ये मेरे से इतने से ही बड़े हैं, इन Hmm. दीज few years he Oh, has yeah. accomplished just so much. करेक्ट करेक्ट बट दिस वाज रफली आवर टाइम एट टीएमटीसी पुणे जहाँ हम क्लासरूम सेशंस अटेंड करते थे, मस्त दोस्तों के साथ हैंग आउट करते थे, खाते थे पीते थे, मस्त बहुत अच्छा खाना हुआ करता था. बट डू यू हैव एनी कोर मेमोरीज दैट यू वुड टेक फॉरवर्ड फ्रॉम दोज 14 days stay in TMTC? यार आई थिंक आई वुड तो टेक फॉरवर्ड माई डिसिप्लिन, बिकॉज एकदम आई यूज टू वेक अप ऑन टाइम, आई यूज टू डू एवरीथिंग दैट इज सपोज टू बी डन, आई यूज टू Hmm. go for my classes, and after that, come what may, I would go to the gym. And that is such a treasured habit, and I try so hard to recreate it, but I way think you would be possible. the only one who would have gone to the gym. कोई नहीं जाता था, I think apart हाँ from. हाँ, तो वो जिम ऐसा था भी नहीं वैसे, मतलब इट्स अ वेरी बैटर्ड डाउन जिम, एंड आई डोंट थिंक एनीवन यूजेस इट. इनफैक्ट द गार्ड वाज आल्सो वेरी शॉक्ड कि like why are you here, why are you on this side of the campus, and I told him ki the gym is here. And he's like ki so what, like just go outside, there's a gym that you can pay a daily rate for and use the gym. Hmm. बट आई रिमेम्बर थिंकिंग कि नहीं, फ्री में मिल रहा है तो वहीं कर पे। लो हाँ. हाँ तो बट इट वाज वही, इट वाज वेरी वेरी ओल्ड, आई डोंट रिमेम्बर हु द लास्ट, मतलब आई डोंट थिंक मेरे पहले किसी ने यूज किया होगा, आई एम श्योर किया तो Hmm. होगा तभी वो है, बट वही वेरी वेरी रन डाउन. बट यार आई रिमेम्बर कि तो इट वाज सच एन ओल्ड जिम कि द डंबल्स वर राउंडेड. Hmm. यूजुअली द डंबल्स आर हेक्सागोनल इन शेप और मतलब फ्लैट होते हैं, तो यू कैन कीप देम ऑन एनी सर्फेस एंड दे विल Hmm. रिमेन देयर. बट आई रिमेम्बर, मतलब इट जस्ट किप्ड माई माइंड कि यहाँ पे द डंबल्स आर राउंड, एंड आई केप्ट देम ऑन अ फ्लैट बेंच and just ऐसे walked over to use my phone, and by then a 10 kg dumbbell had just My rolled God. and fallen on my foot, and my foot swelled up, matlab to 5 to 10 times its size, huge My swelling God. along with the blood clot. My God. And I remember उसी दिन हमें notice मिला था कि next day we are about to leave for a plant, so we need to wear full pants, and we need to wear shoes Yeah. mandatorily, without which we will not be taken into the plant. And I remember thinking ki I have to fit my foot into the shoe. Nothing else matters. I just have to fit my foot into the shoe. And I called my closest friends. I think पूरी रात हमने बस उस पे बर्फ लगाई है, एंड किसी तरह से उसको जूते के अंदर, मतलब जूते को लूज करके somehow we have just put my foot in. मतलब I remember for 1 or 2 days after that I hadn't even put the lace on my shoe because it wouldn't go in. इतना सोलन इतना होगा. स्वेलिंग हो गया था. बट आई रिमेम्बर थिंकिंग यूनानिमसली यार, उस टाइम पे प्रायोरिटीज इतने डिफरेंट हुआ करते थे कि किसी के दिमाग में नहीं आ रहा कि वी शुड वंस सी अ डॉक्टर, मे बी वी शुड वंस गेट एन एक्सरे डन. क्या पता शायद फ्रैक्चर हुआ हो. हाँ, बट किसी को दिमाग में नहीं आ रहा, सबके दिमाग में बस ये है कि ब्रो यू नीड टू पुट योर फुट इन द शू, नहीं तो तुझे शायद लेके नहीं जाएंगे आगे. यार क्रेजी प्रायोरिटीज बट वेरी अंडरस्टैंडेबल यार. बट आई थिंक मेरे भी ऐसे कोर मेमोरीज होंगे, नॉट सो ट्रॉमेटिक, मोस्टली ऑन द लाइटर साइड. बट यार मेरे कोर मेमोरीज फ्रॉम द स्टे एट टीएमटीसी पुणे वाज द सिट डाउन सेशंस दैट वी हैड एवरी डे आफ्टर डिनर, जहाँ पे पूरा ग्रुप आता था. हम लोग वो जो डाइनिंग एरिया हुआ करता था उसके बाहर एक गजीबो टाइप का हुआ करता था, वेर इन वी ऑल यूज टू कम टुगेदर एंड डिस्कस एंड गॉसिप अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग अंडर द सन. एक दिन आई रिमेंबर लोग ये प्रूव करने में लगे हुए थे कि मेरी फीड ज्यादा ब्रेन रॉट है इंस्टा की. एंड मतलब द कंटेंट दैट केम आउट ऑफ एवरीवन्स फीड, मतलब गोल्ड माइन. आई थिंक राखी सावंत's नेम केम अप on how she is the content queen, मतलब she knows what to say, what to do and how it will sell off. And 100%. मतलब Absolute queen. so that I remember those conversations very very vividly because I enjoyed them so much. And apart from that, I think जब हमारे सेशंस हुआ करते थे wherein the founders used to come and speak to us, तो between the sessions ना वो break हुआ करते थे जब हम चाय कॉफी बाहर लगे हुए रहते थे, and everyone used to come out, Mm. all our batchmates, even the founders, CEOs, everyone used to come out and have a very informal tea coffee session with them. And जहाँ पे you can just walk up to them and speak about anything, understand from them. So to have that level of access is amazing. हाँ, ये तो आई अग्री, मतलब इनफैक्ट मुझे ये भी लगता है कि विथ मेनी लीडर्स, जो वो मतलब उस टाइम पे जो बातें हुई थी, एंड जितनी कैंडिडली लोगों ने पूछी थी इन दैट इन Hmm. दोस टी ब्रेक्स एंड स्मोक ब्रेक्स, आई थिंक
matlab, really really good to have also seen that informal side of them, where it was just two people chilling. They are also very happy to come back. Many of them were also task managers, so Task they were managers, also correct. reminiscing their time on the TMTC campus. So that was really good. Yeah, yeah, yeah. But our stay at TMTC Pune was, I think, a very, very endearing experience to me. Hmm. And I think this is a great segue to our next part of our induction program, the entire Bharat Darshan. uh, तो स्टार्टिंग ऑफ भारत दर्शन हमारा जब स्टार्ट होना था, और फर्स्ट स्टॉप ऑन द रोड वो स्टार्टअप पावर्स प्लांट एट खोपोली. बट हमें जब उसके लिए नेक्स्ट डे व्हेन वी हैड टू लीव द नाइट बिफोर, वी वर आस्क्ड टू डिवाइड आवरसेल्व्स इनटू बैचेस एंड कंप्लीटली रैंडम बैचेस. मतलब ऐसा था कि हमें बस एक व्हाट्सएप मैसेज आया था कि दो बस निकलनी है, तुम बस वन में जाओ या बस टू में जाओ, रैंडमली बस अपना नाम लिख दो हर बस के अगेंस्ट. मुझे लगा था रैंडम एक्टिविटी है, कहीं पे भी नाम लिख दो, क्या ही फर्क पड़ता है. बट माई गॉड, द मतलब द पैटर्न दैट केम आउट, जो ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, बाप रे बाप. मतलब एकदम एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द पर्सनालिटी स्पेक्ट्रम पे हम लोग डिवाइड हुए थे. जिस बस में हम थे, मी एंड हर बोथ वर इन द सेम बस, उस बस में जो लोग थे ना, वो लोग एकदम मतलब लाइट हार्टेड गाने सुनते हुए, व्यूज देखते हुए, अपने बगल वाले से बातचीत करते हुए जाते थे. वेरी दैट चिल वेरी मतलब. चिल, वेरी चिल माहौल. एंड जो दूसरा बस था, उस बस में इतनी एनर्जी सुबह सुबह, थ्रू आउट द डे, नो चेंज इन एनर्जी लेवल्स. पहले बंदे से लेके आखिरी बंदे तक लोग अंताक्षरी खेल रहे हैं. बीच वाले सीट के जो बंदे हैं वो उठ के डांस कर रहे हैं, हेड बैंगिंग कर रहे हैं. एंड माई गॉड, द डिफरेंस इन एनर्जी वॉज माइंड वॉगलिंग एकदम. Matlab, I remember this because oftentimes the two buses would line up beside each other in some traffic signal or traffic jam, and just to see the difference. मतलब एक बस में सब लोग बैठे हैं आंख बंद करके, इधर कुछ लोग सो रहे हैं, बाहर देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, and in the other bus people are going wild. मतलब, Yeah, but it is genuinely यार, मतलब crazy. that was a very crazy stark Hmm. difference um, between the two buses. Yes. हाँ यार. But हाँ, our first stop on the road was Tata Power's plant Khopoli. We divided ourselves into buses and then left for the plant. And हम वहाँ पहुँचते हैं and we are all heralded into a hall, and वहाँ पे हम सब बैठे हुए हैं, and there's a very sweet guy from Tata Power who comes, gives an hour long talk on the operations of the plant, वहाँ पे जो लोग काम करते हैं, the biodiversity, flora and fauna of the entire surroundings. एंड फिर हमें वो सेफ्टी इक्विपमेंट पहना के प्लांट में ले जाते हैं. हम दो बैचेस में जाते हैं, दो डिफरेंट प्लांट्स में. एंड फ्रॉम देयर आई ऑल्सो रिमेंबर कि हमें एक डैम पे भी ले गए थे ऊपर में. इट वाज जस्ट Hmm. थोड़ा सा, मतलब छोटा सा हाइक ही था. एंड वी रीच्ड द टॉप ऑफ अ डैम एंड आई रिमेंबर द व्यूज देयर. माय गॉड, सो ब्यूटीफुल. देयर वाज अ विंड व्हिच वाज ब्लोइंग. वी आर जस्ट एट द, मतलब टॉप ऑफ द डैम, पानी बह रहा है उस साइड पे, एकदम एक लश फॉरेस्ट था. एंड वहाँ पे मतलब किसी ने गरम गरम चाय दे दी थी, तो एकदम जन्नत लगा था. पूरा बैच वहाँ पे एंजॉय कर रहा था. एंड आई थिंक, बट मतलब टाटा पार्क के हमारे विजिट से जो मेरी एक मतलब बहुत ही ज़्यादा क्लियर मेमोरी है, कि जब हम आ रहे हैं डैम से उतर के टू गेट इनटू आवर बसेस, आई सी हर दैट शी इज कंप्लीटली बॉलिंग हर आइज आउट, एकदम रो रही है, आंसू निकल चुके हैं. मतलब शी कांट कंट्रोल हर टीयर्स. एंड ऐसा भी नहीं कि वो 5 मिनट या हमें देख के कुछ रुक गया, वो 1 घंटे तक चला था. माय गॉड. मतलब what to do, but um, कांट हेल्प इट. मतलब वो तो दैट वाज अ, मतलब वेरी ट्रॉमेटिक मेमोरी अगेन फॉर हर. वो जो 2 दिन था, पैर टूटा, but रोना नहीं आया. तो, this was also because I had gotten yelled at very humiliatingly by the HR right when we were at the plant. So मतलब, मतलब क्वाइट अंडरस्टैंडेबल. बट हाँ, तो हम लोग उस प्लांट से फिर निकलते हैं. आई डेंट रिमेंबर, हाँ, कि हमें एक जगह लंच पे ले गए थे. इट वाज अ वेरी फेमस ढाबा, जहाँ पे जो प्लांट के वर्कर्स है ना, सब ने बोला था कि जाते हो इस ढाबे पे तो खाना. मतलब, और मैंने गूगल पे भी सर्च किया था, बिकॉज मुझे तो इन जनरल ऐसे स्क्रॉल करना और वैसे पसंद है, तो मैंने बस ऐसे एक बार स्क्रॉल करके देखा था. जेनुअली बहुत लोगों ने तारीफ किया था कि इफ़ यू आर टेकिंग दिस रोड यू शुड स्टॉप एट दिस ढाबा. एंड वी वर टेकन टू दिस ढाबा. एंड मतलब उस ढाबे की मुझे काफ़ी मेमोरीज तो नहीं है, बहुत भूख लग गई थी मुझे. बट डू रिमेंबर उस ढाबे पे क्या हुआ था? कुछ हुआ हो? नहीं, nothing interesting. I think the only thing I remember is बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी and we were supposed to open our shoes and go inside. So everyone was really, मतलब ऐसे hustling with the logistics of कि जूता खोल के हम अंदर गए हैं, जूता थोड़े डिस्टेंस पे रखा हुआ है, हम्म. बारिश हो चुकी है तो कीचड़ हो गया है, तो how do we come and wear our shoes with clean feet? And that was the only thing on top of या, everyone's mind. वो भी But एक
हाँ, Hmm. उसके राइट आफ्टर, तो we have all then boarded our buses and we have started the journey away from Khopoli now. बस में बैठते हैं, बस चालू होती है, थोड़े दूर जाती है, एंड suddenly just the back part of the bus just tips Yeah. inside, and then the driver runs out and checks कि वो एक पार्ट एक्चुअली दलदल था, वो कीचड़, पूरे रोड पे कीचड़ हो गया था, तो उसको भी पता नहीं चला. And my god, and then Hmm. the entire bus had to, everyone in the bus had to come down, push the bus a little bit, many people came to help. हाँ, And बाप रे. that took a lot of time, I remember. मतलब I remember that entire day कि पूरे दिन Yeah. इतने थके हुए थे इन सब के बाद, then this also ended up happening. And this was just the first day of Bharat Darshan. हाँ. But crazy memories start up our Khopoli mein. Our next stop on the road was, I think, Bangalore. No, we had come I down to think, Bangalore. yeah, we had come to Bangalore, and on the first night, we were put up in the Vivanta, right opposite Samsung Opera House. वो चर्च तो स्ट्रीट. ऑन हाँ. चर्च स्ट्रीट, हाँ. हाँ. तो अम, अब वहाँ पे बहुत सारे सीनियर लीडर्स आए हुए थे. आई थिंक द CHRO ऑफ टाइटन, ऑफ टाटा Tata एलेक्सी. Tech was also there. CHR of Tata Tech. देन अगेन टाटा क्वांट के CEO थे. मल्टीपल, मतलब Hmm. मल्टीपल हाई रैंकिंग पीपल वर आल्सो देयर हु weren't able to make it to TMTC. तो दे हैड ऑल कम फॉर द डिनर. एंड हाँ, मतलब आई रिमेम्बर कि वो एक, लाइक दे ऑल गिव There, सम, मतलब ऐसे स्मॉल इनफॉर्मल टॉक्स. yeah, they interacted with us very informally. अच्छा था, it was. But I remember उस सेशन से एक चीज जो हुई थी ना, कि वहाँ पे ना सब मतलब, I think there was one guy, there was one gentleman who had interviewed a lot of us. तो जब पूछा कि अरे मेरे तो काफी सिमिलर फेसेस दिख रहे हैं और बच्चे भी कह रहे हैं कि हमने तो इनसे इंटरव्यू हुआ था हमारा, तो वो जेंटलमैन बस पूछते हैं कि कितने लोगों का मेरे साथ इंटरव्यू हुआ था, एंड आई थिंक हाफ ऑफ द बैच हाथ उठा देता है. So my God, I was baffled कि बाप रे ये कैसे हो रहा है. हाँ, But हाँ. I remember I was sitting with a friend during the dinner, and we both also were extremely baffled. मतलब कि इतना, कि ऐसा कैसे, like 80% of the batch has interviewed with one person. Either he's on many panels, or maybe we should, be normalizing scores across yeah, but I panels. But remember that is one of my clear memories from those sessions. हाँ, यार मुझे एक और भी चीज़ याद है कि, तो अगेन दिस पर्टिकुलर जेंटलमैन ओनली, एंड ही वाज वेरी स्वीट, ही वांटेड एवरीवन टू गिव अ प्रॉपर, मतलब अपना स्टोरी बताओ, अपना इंट्रोडक्शन मत दो, लाइक. एंड ही वाज वेरी कीन ऑन दैट कि डोंट Hmm. टेल मी कि तुमने IIT से बीटेक करा है, एम से MBA करा है, एंड देन तुम किसी टॉप कंसल्टिंग फर्म में काम करते थे, एंड now you are here. That's not something I want to hear. I want to hear where you are coming from, what Hmm. your parents wanted you to do, what you are doing. And yeah, I think just the crazy stories that came out, मतलब the respect for some of my batchmates just went through the roof that day. कि Hmm. इतना, मतलब people don't end up sharing these kind of details and Yeah. things usually until you really nudge them to. But that is one thing. But the second thing is also कि तो उसी दिन एक, again during this exercise, one of our batchmates was saying कि he earlier used to have his own business, his family business, that he sold off and then decided to do an MBA. So he was communicating this decision to his parents, and his father said कि सोच लो, मतलब if you end up doing this, then you will always have to be in a job, you will always have to work for someone, you will never Hmm. ever be your own boss, you will never be the master of your own time, and master of yourself. So even that day he told his dad ki I realized that, and that's okay, and if I have to serve, then I will only serve the Tatas. तो आई रिमेम्बर दैट लाइन, मतलब ईच टाइम आई थिंक अबाउट इट एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बिकॉज Yeah. आई थिंक, मतलब दैट रेजोनेट्स वेरी मच विद मी ऑल्सो, हैविंग हैड सच अ रिच एसे टाटा लेगेसी विद इन द फैमिली. बट हाँ, मतलब बट आई थिंक समवन जस्ट वर्बलाइजिंग समथिंग दैट यू फील Yeah. सो डीपली अबाउट, एंड पर्सनली आई रियली कांट, मतलब um, मतलब I can't imagine myself working for a non-Tata enterprise. मतलब I think Um, just the softer elements of, now that in my internships and stuff I have seen some companies up close. I really मतलब understand कि क्यों इतना strong लोगों का preference होता है towards being a part of this group and this only. yeah, I think that resonated with a lot of us out there in the room. Mm. But the next day we were supposed to visit the Hosur factories of Titan, which is Mm. why we were in Bangalore.
एंड हमें वॉचेस एंड ज्वेलरी फैक्ट्री दोनों जाना था. Hmm. तो वी वेंट देयर इन बैचेस. वॉचेस फैक्ट्री में हम जाते हैं. इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस to see how the watches which you wear on a day-to-day basis, how they are made completely, starting from how they put the smallest parts together. It's a very complex process. Respect for a lot of people who do this, and the amount of patience and precision that it requires. And the watches factory experience was a very nice one. And we then move on to the jewelry factory experience. And jewelry factory में मुझे याद है कि एक मतलब काफ़ी काफ़ी यूनिक था उसका प्रोसेस, बिकॉज इट्स अगेन वेरी हाईली गार्डेड सिक्योरिटी, द अमाउंट ऑफ वैल्यू, द गोल्ड दैट इज प्रेजेंट देयर. तो हम जाते हैं अंदर, हमें ऑर्नामेंट्स निकालने बोला गया था, मतलब वेरी ऑब्वियसली. तो हम जाते हैं अंदर एंड वी सी द एंटायर प्रोसेस ऑफ हाउ द गोल्ड ज्वेलरी इज मेड, द हाउस होल्ड नेम ऑफ गोल्ड ज्वेलरी दैट वी हैव इन इंडिया, वो कैसे बनता है, स्टार्टिंग फ्रॉम मेल्टिंग द गोल्ड टू द मोल्ड्स दैट वी पुट इट इन, जहाँ पे उनकी हैंड क्राफ्टमैनशिप दिखानी होती है, टू द स्मॉलेस्ट डिटेल्स, द फाइन मतलब finish that you put on it, and the final product that comes out. And the people who walked us through it इतना अच्छे से समझा रहे थे. It felt so nice to see the entire process. काफ़ी अच्छा लगा था वो experience. And when we were leaving from there, तो मुझे याद है कि हमें बोला गया था कि एक छोटे से चैम्बर में जाओ, वहाँ पे तुम्हारा फ्रिस्किंग होगा. तो आई वॉक इन टू दैट चैम्बर एंड सडनली ऊपर से एक इतना जोर का हवा का झोंका आता है, इतना जोर का कि मेरे बाल इधर उधर हो गए हैं, जो कपड़े पहने वो सब इधर उधर हो गए हैं. एंड इट वाज मतलब बाद में बताया गया कि वो इसलिए होता है ताकि अगर कोई गोल्ड डस्ट रह गया हो थोड़ा सा तो वहीं वहीं पे गिर जाए. बट बाप रे, आई डिड नॉट सी इट कमिंग एट ऑल, इतना हाँ. जोर था वो. Yeah, yeah. I mean, just for people who will be listening to this and not able to understand the extreme propensity of the pressure with which that हाँ. air gushes down on you. Matlab, it genuinely feels like the skin might go off of your Yeah. body. Matlab, especially in the first, second times when you experience this. My God, matlab, I remember now I've gotten हाँ. used to it, but the first time to bapre, matlab, and it's not like your usual frisking zone where you're just shouted by a curtain or something. It's literally like a box, and you go into that box, and then this wind gushes, Comes out, and हाँ. you panic for 2 seconds ki what just happened, and then you walk out. बट हाँ But यार, बट मुझे टाइटन का तो बहुत अच्छे से याद है, एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम. मतलब इतना मुझे मजा आया था इस दिन पे तो, क्योंकि तो right when we go to the watches factory, there's a very nice gentleman who comes and gives us an overview. मतलब he's very funny, so light-hearted. He's cracking jokes throughout his presentation, and बहुत बढ़िया. मतलब he's I think he was very close to retiring at that point. His retirement was just a couple of weeks away, and he goes on to say कि हमें हफ्ते में एक दिन वीक ऑफ मिलता है फैक्ट्री से, एंड ऑल द पीपल आर सैड जिन जिनका भी छुट्टी होता है, बिकॉज द फैक्ट्री फूड इज सो गुड कि छुट्टी के दिन उन्हें अपनी वाइफ का हाथ का खाना खाना पड़ता है. एंड एवरी वन इज जेलस कि यार शिट, मतलब माई को एम्प्लॉयज दे विल बी ईटिंग द फैक्ट्री फूड एंड आई हैव टू ईट माई होम फूड. एंड ही वाज सेइंग कि उनके अपने रिटायरमेंट में द थिंग दैट ही इज सैडेस्ट अबाउट कि नाउ ही डजंट गेट, मतलब ही वोंट गेट टू ईट फैक्ट्री फूड एनी मोर. तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि हाउ गुड कैन द फूड एट होसुर बी, क्योंकि अगेन मतलब होसुर इज नॉट समथिंग यू एसोसिएट विद ग्रेट कुजीन और ग्रेट फूड, राइट? मतलब तो मतलब आई वाज इन स्प्लिट्स यार, मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी उनकी बातें सुन के. बट लेटर ऑन व्हेन आई वेंट टू द फैक्ट्री आई रियलाइज कि वो गलत तो नहीं कह रहे थे, क्योंकि होसुर में देर इज वन स्प्रेड ऑफ नॉर्मल फूड, and there is another entire spread of diet food, which is healthy food, calorie counted, balanced for carbs, proteins, fats. And matlab yaar, hosur is way ahead of its टाइम time, यार. and आई थिंक respect. गूगल के बाद अगर कोई देख रहा हाँ. है तो होसुर इज एन अंडररेटेड जेम, हाँ मस्ट हाँ, ट्राई. 100%. मतलब आई थिंक एग्जैक्टली कि कंपनी के खानों में शायद गूगल वन पे आएगा. एंड आई वुड टोटली नॉमिनेट होसुर फॉर नंबर टू. मतलब सॉरी हाँ. होसुर डिड नॉट नो योर गेम, बट बट आई हाँ. कंप्लीटली मतलब रेजोनेट विद दिस फीलिंग यार. मुझे भी जब फैक्ट्री जाना होता है ना, तो अगर मेरी मीटिंग फर्स्ट हाफ में है तो मैं सेकंड हाफ में लंच करके ही वापस आऊंगा, या सेकंड हाफ में मीटिंग तो लंच के टाइम पे जाओ, लंच करो, फिर मीटिंग करके आओ. द फूड हाँ. इज सो गुड यार, यू वुड नॉट वांट टू मिस आउट. हाँ. तो आई थिंक थोड़ा अंडररेटेड चला जाता है बिकॉज दे सर्व इट इन योर स्टील प्लेट्स एंड बोल्स. बट अगर ये फैंसी प्लेट्स वेट्स में देते तो श्योरली लाइक इट वुड बी वेरी वेरी वायरल ऑन यार. रील्स एंड स्टफ ऑल्सो. सेकेंड, आई ऑल्सो रिमेम्बर वॉचेस फैक्ट्री के अंदर ही एक ऐसा डिपार्टमेंट था जहाँ पे सारी लड़कियां काम कर रही थी. तो आई आस्क्ड दैट गाय कि यहाँ पे सब लोग लड़कियां हैं, विच वाज वेरी अनकॉमन. मतलब फैक्ट्री सेटिंग में इतनी लड़कियां होना एक डिपार्टमेंट में इज नॉट द नॉर्म. सो ही सेड कि हाँ, मतलब
लाइक यू आर राइट कि ज़्यादातर लड़कियां ही हम लेते हैं यहाँ के लिए. देन ही गोज ऑन टू से कि यार द एक्चुअल रीजन इज जस्ट कि यहाँ पे हम मूवमेंट बनाते हैं. एंड मूवमेंट बनाना बहुत पेशेंस का काम है. 8-10 घंटे एट अ स्ट्रेच तुम्हें बैठे रहना पड़ता है इन अ चेयर इन फ्रंट ऑफ, मतलब इन फ्रंट ऑफ अ टेबल, एंड यू हैव टू डू दैट वर्क विथ योर हैंड. योर हैंड हैज टू बी वेरी स्टिल एंड यू कैनॉट अफोर्ड टू बी डिस्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग दिस एंटायर प्रोसेस. एंड ही सेड कि लड़कियों में ही इतना पेशेंस होता है. लड़के तो वी कांट एक्सपेक्ट देम टू हैव दिस काइंड ऑफ डेडिकेशन टू द क्राफ्ट. एंड आई रिमेंबर थिंकिंग कि शिट, मतलब लाइक थैंक गॉड कि मैंने ऐसे पढ़ लिख लिया. एंड लाइक आई डिड माई MBA एंड एवरीथिंग, बिकॉज इफ आई हैड टू गो इनटू अ टेक्निकल लाइन and I, like, I would never have been able to hold this job down. Make it here. I know, right? मतलब somehow अगर selection हो भी जाता, they would have kicked me out on day 2. But कि हाँ, तब मुझे थोड़ा relief लगा कि I'm away from the technical fields. But या आई थिंक तनिष्क फैक्ट्री में भी मुझे ये सब देख के काफी मजा आया था कि देयर वाज अ, जैसे मतलब ईंट होता है जो मरून कलर का, यू लिटरली हैव गोल्ड ब्लॉक्स ऑफ दैट साइज. माय गॉड, हाँ. आई रिमेम्बर कि मैंने हाथ अपना ऐसे डाल दिया था इन तो रॉ मटेरियल कलेक्शन होता है जहाँ पे, वहाँ पे देर आर अ लॉट ऑफ वही अगेन गोल्ड डस्ट जो आता है फैक्ट्री को फ्रॉम द डिफरेंट स्टोर्स वेयर पीपल हैव मेल्टेड देयर ज्वेलरी, और देर आर सम स्मॉल shards of jewelry. So I just touched it and very normally just touched it. एंड आई रिमेंबर 2 people ran to me and panic कि अब मैंने हाथ को बोले स्प्रे करना पड़ेगा बिकॉज व्हाट इफ हाथ में कुछ चिपक रह गया गया हो. हो. एंड देन दे वर टेलिंग कि एकदम ऐसे नैनोमीटर्स होता है ब्रो, लाइक यू कांट इवन, मतलब आंख से देख ही नहीं सकते हम कि कुछ रहा कि नहीं रहा. तो या आफ्टर दैट आई रिमेंबर बीइंग वेरी कॉशियस कि आई हैव टू नॉट टच एनीथिंग, आई कैन जस्ट लुक अराउंड. Look at it. uh, but I think after, so this is our entire Titan experience and Bangalore, and after this we had gone to, I think, your hometown, right? हम रांची गए थे ना, जमशेदपुर. हाँ, करेक्ट. सो बैंगलोर से नेक्स्ट स्टॉप वाज रांची, रांची टू जमशेदपुर. यस, फॉर टाटा स्टील. मतलब इसका भी काफ़ी क्रेजी स्टोरी है, बिकॉज स्टार्टिंग में ही इतना हैपनिंग हो गया था. तो वी टुक अ फ्लाइट फ्रॉम बैंगलोर टू रांची. हम रांची पहुंचते हैं एंड ऑल ऑफ अस अगेन गेट इनटू आवर बसेस टू रीच जमशेदपुर, विच इज आई थिंक हार्डली 2 hours अवे फ्रॉम रांची. एंड हम निकल जाते हैं, वही गाने लगा चुके हैं, रोड ट्रिप पे हैं, बातचीत करते हुए जा रहे हैं. एंड अचानक से द बस स्टॉप्स. एक ढाबा आता है, आउट ऑफ नोवेयर द बस स्टॉप्स. एंड वी गेट टू नो कि वी हैव लॉस्ट हर वे. पता ही नहीं है कि आगे कहाँ जाना है, क्या कहाँ आ गए हैं, कुछ नहीं पता. हम बस ढाबे पे उतरते हैं, मस्त चाय कॉफी पीते हैं, कटलेट वटलेट खाते हैं, और हम वेट कर रहे हैं कि अब क्या होगा. दैट आई हाँ. रिमेम्बर वेरी क्लियरली कि ये सब मतलब खो चुका है, हम्म. कुछ नहीं पता क्या है. हाँ, अरे आई ऑल्सो रिमेम्बर कि तो यूजुअली फ्रॉम रांची टू जमशेदपुर शुड नॉट टेक मोर देन 2.5 hours हम्म. एट एनी कॉस्ट. मतलब अगर आप हम्म. बिना रुके जा रहे हो तो आप 2 hours 15 minutes में भी पहुंच जाओगे इन अ नॉन ट्रैफिक, मतलब नॉन वही नॉन पीक आवर. तो एंड वी आर गोइंग इन सर्कल्स. तो दिस आई रियलाइज अर्लियर ऑल्सो कि हम जहाँ से जा रहे हैं, बिकॉज आई मेड दिस जर्नी सो मेनी टाइम्स माई सेल्फ, कि हम सही तो नहीं जा रहे हैं. आई हम्म. रिमेंबर टेलिंग द ड्राइवर ऑल्सो कि भैया आप गलत जा रहे हो, मतलब आप कहाँ जा रहे हो, बिकॉज हम्म. दीज रोड्स आर नॉट समथिंग आई हैव सीन. एंड ही ऑल्सो सेज कि यार पता नहीं मेरा, मतलब आई एम नॉट गेटिंग एनी नेटवर्क, माई maps is not working, I'm हम्म. just going straight in that case. But वही है कि the straight roads were also circular I felt. But हाँ यार, हम्म. बट हम जहाँ पे रुके थे तो उस जगह पे आई रिमेम्बर नोटिसिंग कि इंग्लिश में ज्यादा साइन बोर्ड्स नहीं थे, हिंदी में थे एंड संथाली में थे. एंड वहां पे भी एक जूडियो था. तो माय गॉड. मेरा इतना उस दिन, मतलब आई हैव द रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट. दैट आई हैव गेन्ड फॉर ट्रेंट ऑन दैट डे कि द ओनली ऑर्गेनाइज्ड रिटेल आउटलेट दैट इज प्रेजेंट इन दैट कैचमेंट भी नहीं कह सकते, इन द टाउन और मतलब विलेज I व्हाटएवर don't यू know वुड if कॉल it's a इट. town also. हाँ, वाज अ ज़ूडियो. एंड अच्छी खासी भीड़, मतलब ऐसा नहीं कि ज़ूडियो इज नॉट हैविंग फुटफॉल देयर एंड पीपल आर गोइंग टू योर अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल शॉप्स, क्योंकि अगेन प्राइस पॉइंट एंड ऑल इज कंपेरेबल एंड इट लुक्स, मतलब इट लुक्स वेरी वेरी फैंसी. मतलब वहां पे दैट लुक्स लाइक द ओनली ऐसे हाईटेक मॉडर्न बिल्डिंग. तो हम्म. या दैट इज अ वेरी, मतलब इनग्रेन्ड मेमोरी इन माय माइंड. हाँ, आई बट रिमेम्बर द एरिया वाज मतलब ऐसे इन द मिडल ऑफ नोवेयर, जहाँ पे नेटवर्क भी नहीं आ रहा था किसी के किसी को. फोन में नेटवर्क नहीं था. हाँ, हाँ. टावर नहीं था, इंटरनेट तो छोड़ो, मतलब वही लाइक इवन बेसिक कॉल्स पीपल वर नॉट एबल टू मेक. वो ढाबे वाले को पे करने के लिए पीपल वर रनिंग अप टू द बस टू गेट कैश फ्रॉम देयर बैग्स. करेक्ट, हाँ.
उसके बाद आई थिंक यू ओनली हैड स्टीयर्ड अस बैक टू जमशेदपुर, हाँ, राइटली ना? या हाँ। आई मीन आई रिमेम्बर वही कि देन तो उसके बाद वो भैया के बगल में बैठ के देन कि चलो तो आप हाईवे तक लेके आओ, उसके आगे का मैं बताती हूँ। देन yeah, we reach हाँ Jamshedpur in some like 4 hours time, which is usually just a 2 hour journey. हाँ, वी रीच जमशेदपुर एंड उसके बाद का आई डोंट रिमेम्बर वेरी क्लियरली। यू रिमेम्बर? Yeah, yeah, bro, I remember everything. How do you have no memory of? यार आई थिंक तो वो थोड़ा सा एक बताया पहले कि टॉप 5 years ऑफ माई लाइफ, वो हाँ, कुछ बट भी इतनी याद नहीं। चीजें हुई थी तो वेरी ऑब्वियस टू फॉरगेट अ फ्यू ना। तो अ, तो जमशेदपुर में रिमेम्बर कि हमें सबसे पहले वो रूसी मोदी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में लेके गए थे, जो एक पिरामिडल म्यूजियम है। मतलब इफ समवंस नॉट सीन द शेप ऑफ द बिल्डिंग, आई वुड स्ट्रांगली अर्ज यू टू गूगल इट, बिकॉज इट इज मतलब आई हैव नॉट सीन एनीथिंग सो यूनिक इन माई लाइफ, एंड आई डोंट थिंक एग्जिस्ट करता है। मतलब आई थिंक इट वुड बी सेफ टू से कि ऐसे वेरी वेल नोन कैपेसिटी में तो कुछ एग्जिस्ट नहीं करता ऐसा। तो इट इज़ एन अंडरग्राउंड म्यूजियम of all the Tata memorabilia. तो the first block of steel that Tata Steel had produced to the first ऐसे वो रेलवे ट्रैक का जो पार्ट बनाया था टाटा स्टील ने, देन मल्टीपल सच थिंग्स, टाटा मोटर्स के कुछ कुछ वहाँ पे पार्ट्स, मतलब कुछ हिस्टोरिकली रेलिवेंट चीज़ें रखी हुई हैं। बहुत अच्छा सा म्यूजियम है विद एन एडजेसेंट आर्ट गैलरी देर। एंड the reason I remember this is, so I spent 2 years at Excel doing my MBA. My house from Rusi Modi Center of Excellence is about 50 meters, not even that. From and Rusi Modi ka front gate to my home is 50 meters. Rusi Modi ka back gate to Excel is barely 80 meters. Every single day of my 2 years there, I have begged and pleaded to the guard at Rusi Modi ki please just let me pass. Matlab just open the gate, watch me walk from the front gate to the back gate, which are also मतलब not that far off. They are also just 20-50 meters apart. आप खड़े होके एक जगह पे देख सकते हो कि आई एम लीविंग योर कैंपस फ्रॉम द अदर एंड, एंड ही हैज सेड कि नहीं मैडम हमको अलाउड नहीं है, एंड वी कैन नॉट ओपन द गेट फॉर यू, आई विल लूज माय जॉब, प्लीज अंडरस्टैंड। But I have still matlab every day gone to him to request ki please just please, because then my commute becomes so short, and every time he would say कि नहीं आपको घूम के जाना पड़ेगा, जिससे 2 किलोमीटर हो जाता था if you like walk around the entire campus. And I remember very distinctly that day कि बस रुकेगी and I have to be the first person to go there to see अगर सेम भैया अभी तक है, and then I will request him again कि you have to open the gate, and he was also laughing so much कि finally you got me to open the gate, but he was very happy। मतलब वो भी बहुत ही ज्यादा elated थे कि यार 2 या 3 बार तो साल में ये गेट खुलता है for like batches of people to come in। तो मतलब यू मस्ट हैव रियली ऐसे डन समथिंग ग्रेट। मैंने भी उनको बोला कि आई जस्ट लाइक कम विद अ बंच ऑफ हाउ द पीपल। टर्न टेबल्स। हाँ, बट बट नहीं, मुझे अब धीरे धीरे याद आ रहा है। आई थिंक उसी दिन हमें जमशेदपुर एफसी के होम ग्राउंड, होम स्टेडियम में भी ले गए थे, जहाँ या पे या हमें मतलब नॉट ओनली ऑन द सिटिंग अरीना बट हमें पिच तक पे भी ले गए थे ना। लॉट ऑफ अस आल्सो रैन अराउंड द एंटायर रेसिंग ट्रैक। तो वो भी एक काफ़ी कोर मेमोरी है कि बिकॉज आई एम अ बिग फुटबॉल फैन, तो हाँ अब आईएसएल के किसी होम ग्राउंड पे जाना इज़ अ बिग मेमोरी। मुझे वेरी क्लियरली याद है ये तो। एंड ऑल्सो रिमेंबर, जो मुझे अब याद आ रहा है कि वी ऑल्सो हैड वन सेशन ऑन सीएसआर इनिशिएटिव्स बाय द टाटा हाँ, स्टील या ग्रुप। टीएसएफ वो टाटा स्टील हाँ, टाटा फाउंडेशंस। स्टील फाउंडेशंस, अ, करेक्ट। तो यार आई रिमेम्बर फीलिंग सो मतलब पोजेसिव कि ये स्टेडियम ये सब तो मतलब आर सच इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ माय लाइफ कि मुझे बहुत मतलब प्राउड भी फील हो रहा था। बट मुझे लग रहा था कि आई वांट टू शो एवरीवन अराउंड, मतलब आई वांट टू टेल एवरीवन कि क्योंकि पीपल वर जस्ट वॉन्डिंग अराउंड राइट, लाइक दे डोंट नो कि मतलब कहाँ पे क्या होता है, किस पार्ट का सिग्निफिकेंस क्या है उस स्टेडियम में। मतलब कोई वाटर कूलर तक पे अ, मतलब एंड यार मतलब वही है कि मेमोरीज बोले तो there was a time when Deepika Kumari used to casually just have water at a certain matlab place, and now नाउ she's शी इज she's an Olympic medalist, and वही कि these unless you have someone who has seen it you don't really have these stories be told। तो बट हाँ बहुत बहुत ही अच्छा मेमोरी वो तो आई रिमेम्बर। उसके बाद जो टाटा स्टील फाउंडेशन विच इज द सीएसआर विंग ऑफ टाटा स्टील, उसके जो एक्स चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर थे उनका टॉक था। उसमें डू यू रिमेम्बर एनीथिंग? मतलब उसमें मुझे एक ही चीज़ याद है कि काफ़ी लॉजिस्टिकल इश्यूज हो रहे थे। आई थिंक एसी हम्म। ठीक से नहीं चल रहा था, सम हम्म। ग्लिच इन द सिस्टम, बाहर पानी रखा था तो पीपल वर गोइंग इन एंड आउट।
मुझे ये कियोस याद है। हाँ हाँ, मतलब आई थिंक कुछ ऐसा था कि अंदर बैठ के पानी पीना अलाउड नहीं है, सो यू हैड टू वॉक हाँ। आउट एंड एसी वाज नॉट वर्किंग, यस, बिकॉज इट वाज आफ्टर द क्लोजिंग आवर्स ऑफ दैट प्लेस या हम्म, कुछ। यार बट आई रिमेंबर दिस स्पीच ऑल्सो, इसमें, क्योंकि यार मतलब आई डोंट रिमेंबर द एंटायर थिंग ऑब्वियसली, बट वन थिंग दैट रियली स्टेड विथ मी वाज कि तो ही सेड कि ऑफन टाइम्स जब हम ऐसे फिलेंथ्रोपिक लाइन में होते हैं तो हम्म, पीपल मेक इट सीम कि हम इतने लार्ज हार्टेड हैं एंड हम इतने अच्छे इंसान हैं कि हम ये करते हैं आउट ऑफ द गुडनेस इन आवर हार्ट्स, बट realize that you have taken land from tribal people, you have built your own fortress, you have made, chalo, you have given livelihoods to many people, but you have also taken from someone. Now हम्म, it is your duty to ensure कि तुम उनको, like, you make hospitals for them, you make schools for them, you give them हम्म, what they deserved, what they would have otherwise had, uh, have had you not taken away from them. So that he used to say कि your give back should always come from a place of not guilt, but वही कि the fact, the realization that you have taken from someone, now you need to make it proportional हम्म, to them if you are gaining from having taken from them. And secondly कि हमें भी तो अपने प्लांट के गेट्स हर दिन खुले रखने हैं, मतलब वी ओ so much of our ability to हाँ, operate to the peace that we are able to maintain in the area. So at हम्म, no point should we think of ourselves as very high and mighty, better than everyone, benevolent. sanctimonious individuals. We are just like everyone else and we need to be utterly cognizant of that, I think. मतलब हम्म, मैं तो काफी हिल गई थी यार कि इतना brutally honest कोई, कोई है आके हाँ, बता दे ऐसे। कि someone in that line being so brutally honest about this was, मतलब, फिर हाँ, हाँ, नाउ आई रिमेम्बर, थोड़ा थोड़ा वापस याद आ रहा है। बट हाँ, अगले दिन हमें लेके गए थे टाटा स्टील प्लांट में, द एक्चुअल प्लांट ऑफ द टाटा स्टील हम्म, प्रोडक्शन फैसिलिटीज। एंड आई थिंक वो वेरी वेरी, मतलब ऐसे वेल मेंटेन प्लांट है जहाँ पे यू हैव टू फॉलो सेफ्टी इक्विपमेंट टू द डॉट, सेफ्टी रूल्स टू द डॉट। एंड वहाँ पे लिमिटेड सेफ्टी इक्विपमेंट थे, तो हमें बैचेस में लेके जा रहे थे। तो हाँ, आई रिमेंबर कि काफ़ी हैवी सेफ्टी जैकेट था, काफ़ी हैवी हेलमेट था, द मेटल शूज़, एंड वो सब पहन के हम जा रहे हैं प्लांट में, कोल्ड रोलिंग प्लांट में लेके गए थे। हम्म, there was a and the car that had also taken us was driving at I think 10 kilometer per hour एकदम very slowly. हाँ, तो ये these are also some of the snippets that I remember from our visit to the plant. हाँ, तो देर आर मतलब स्पीड लिमिट्स विद इन द प्रेमिसेस, यू कांट Hmm. ड्राइव हायर देन 30-35 kilometers, which is also why on Jamshedpur roads most of the people end up driving at 35, which is very excruciatingly painful to drive behind or go around, because वो ये कि सब लोग वहीं पे काम करते हैं, सबकी जिंदगी भर में ये कोडिंग हो जाती है कि हमें 35 पे गाड़ी चलानी है, एंड देन इफ यू आर ड्राइविंग लाइक अ नॉर्मल पर्सन एट 50-55 ऑन एन ओपन रोड, तो ऐसा लगता है कि वो समवन्स ओवर स्पीडिंग एंड एवरीवन पैनिक्स। Hmm. बट या तो प्लांट में लेके गए, एंड यार सेफ्टी का तो आई थिंक उस Hmm. दिन फिर भी, मतलब इट वाज वेरी नॉर्मल कि देवर, आई रिमेंबर कि देवर नॉट सो स्ट्रिंजेंट ऑन कि यू एब्सोल्युटली हैव टू जस्ट पुट योर फुट हियर 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 एंड वॉक, थोड़ा मतलब बैचेस में लेके जा रहे थे तो, Hmm. क्योंकि अदरवाइज इट इज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, मतलब इट इज सो स्ट्रिक्ट कि इफ यू हैव टू स्टॉप एट सम प्लेस टू इवन यूज योर फोन, उसके लिए भी देर आर डेजिग्नेटेड एरियाज की यहीं पे स्टॉप बाप करो, रे। डोंट लाइक जस्ट रैंडमली स्टॉप इन द मिडल ऑफ द रोड। एंड वही है कि टाटा ग्रुप में एज ओल्ड सेइंग है कि यू कैन ओनली गेट फायर्ड फॉर टू थिंग्स, वन इज फॉर ब्रीचिंग सेफ्टी, द अदर इज फॉर ब्रीचिंग एथिक्स। तो Hmm. गुड गुड शो ऑफ दैट। Yeah, मतलब rightly so. हाँ, सीआरएम तो काफी अच्छा था यार, आई हैव इंटर्न देयर बिफोर, तो अगेन मतलब वाज जस्ट रीहैशिंग ओल्ड मेमोरीज, बहुत अच्छा लगा था वो विजिट बट क्या लास्ट विजिट टाइम। है यार, घर के पास, घर पे रहो, अपने इलाके में सब आए हैं, यू नो एवरीथिंग इन एंड आउट। हाँ यार, बट व्हाट अ विजिट यार। ये तो आई फुल्ली एग्री, मतलब आई थिंक द वे इन विच आई प्रॉपर, मतलब जितना पॉजिटिव प्रोपोनेंट जमशेदपुर के लिए मैं हूँ, आई रियली डाउट, मतलब it would have like Hmm. such hardcore fans, because genuinely yeah, I think like people say all sorts of good things about Switzerland and about Norway and Finland, so on and so forth, and I think having been to a lot of these developed countries, I realize कि most of the things that they have, that Hmm. we aspire to कि हम वहाँ जाएंगे, हम नॉर्वे शिफ्ट हो जाते हैं चलो, and we'll have so and so facilities, are all available in Jamshedpur, मतलब your house is so close to your stadium, is so close to your park, is so close to Hmm. your garden, is so close to your school, and is so close to your office, if you're working. Hmm. So great city, the absolute
best city on this planet. Hmm. Fair enough. Uh, हाँ. from here, I think we had gone to Mumbai. We had come down to Mumbai for a couple of business sessions that we had had, no? नहीं, had we come to Mumbai? Yeah, I think yes, we हाँ. had come to Mumbai after this for for the etiquette sessions. The entire Yeah, yeah. कॉर्पोरेट एटिकेट का जो पूरा एक हाँ, हाँ. ब्लॉक था, तो कॉर्पोरेट एटिकेट के हमारे मल्टीपल सेशंस होने थे. वी वर पुट अप इन ताज प्रेसिडेंट कोलाबा में, एंड इट वाज आई थिंक अ 2 डे वर्कशॉप जहाँ पे मल्टीपल डिफरेंट सेशंस होने थे ऑन लेट्स से योर ड्रेसिंग एटिकेट, डाइनिंग एटिकेट, एंड ऐसे काफ़ी छोटे छोटे मतलब ब्लॉक्स थे. तो रिमेंबर कि एक हमारा जो ड्रेसिंग एटिकेट का सेशन था वेर इन वी वर टोल्ड कि मतलब वो ब्रीफ हमें ये दिया गया था कि यू कम अप इन योर मोस्ट वेल ड्रेस्ड फॉर्मल्स, जो हाँ, सबसे बेस्ट लुकिंग क्रिस्प फॉर्मल्स हो, बिकॉज यू विल बी टॉट ऑन हाउ यू विल बी इवैल्यूएटेड एंड यू विल बी टॉट कि क्या पहनना चाहिए ऑन व्हाट. आई हाँ. थिंक काफी डिटेल मतलब में था वो सेशन ना. हाँ, हाँ. एंड क्या पहनना चाहिए इज नॉट द यूजुअल क्या पहनना चाहिए. इट इज कि अगर आपका शक्ल गोल है तो आपको ऐसा कॉलर पहनना चाहिए. अगर आपने ऐसा हम्म. कॉलर पहना है तो आपको ऐसा टाई का नॉट बांधना चाहिए. टाई का ऐसा नॉट बांधा है तो वो टाई किस टाइप की होनी चाहिए, उस पर प्रिंट कौन सी होनी चाहिए. अगर हम्म. टाई और शर्ट ये है तो फिर ब्लेजर कैसा होना चाहिए, ब्लेजर का हाथ कहाँ तक आना चाहिए, उसके साथ के पैंट कितना तक आना चाहिए, मोजा कितना दिखना चाहिए, जूता हम्म. कैसे शेप का पहनना चाहिए. हाँ, आई मतलब आई रिमेम्बर. थिंक मतलब दैट इज द डे आई रियलाइज कि लड़कों के भी इतने कुछ मतलब इट ऑल सीम्स द सेम, राइट. यू हैव पैंट, सूट, शर्ट, टाई एंड शूज. आई थिंक लड़कों को भी उसी दिन पता चला होगा कि कि उनका क्या भी. क्या चीजें एग्जिस्ट हाँ, करती है इस यूनिवर्स हाँ. में. बट हाँ, मतलब नॉट ओनली योर क्लोथ्स बट ऑल्सो एक्सेसरीज भी हमें बताई गई थी कि यू शुड कैरी दिस बैग. एंड रिमेम्बर उस बैग में द एंट्री लेवल सजेशन वाज कि टूमी का बैग लेके चलो. विच इज ऑल्सो मतलब लाख रुपए भर का आता है टूमी का भी कोई जेनेरिक बैग. मतलब 80K to 1 लाख इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अ टूमी लैपटॉप बैग. तो यार मतलब आई एंड एवरीथिंग दैट वाज रिकमेंडेड, आई थिंक फ्रॉम द परफ्यूम्स टू द पेन्स टू every single accessory was of that price point where it just seemed कि आप हमें बता क्यों रहे हो. मतलब we are not हु making हैज दैट enough. काइंड ऑफ मनी. Yeah, who has that kind of money on them, and if we have that kind of money, will we be really working a job मतलब at that point. मतलब I don't think so. तो वो तो मुझे काफी मतलब आई वुडेंट से टोन डेफ बट क्वाइट ऑन दोज लाइंस लगा था कि यार अब मतलब anyone would want to be as relatable as they can be, as grounded as they can be, and that is also the value that the group propagates and everyone has. मतलब ऐसे no one's so high and mighty कि I only have to use 1 लाख रुपए का pen and bag. Most But leaders who came and talked to us were were also. dressed in very हाँ. normal clothes. हाँ. बट हम्म. तो बहुत बैफलिंग लगा था यार मुझे. इवन शैम्पू कंडीशनर सजेशंस वर जस्ट मतलब आई डोंट नो वेरी अनबिलीवेबल फॉर मी कि बट उस सेशन की मुझे एक जो मेमोरी है कि हम लाइक आई सेड कि सबसे बेस्ट ड्रेस्ड अपने जो फॉर्मल्स थे उसमें आए थे. एंड आई रिमेम्बर कि शी हैड कम wearing a white blazer, a white under shirt underneath, a white pant and white shoes, a complete white look. And बाकी जो लोग आए हैं वो अपने जो रेगुलर कलर्स होते हैं ब्लैक, ब्लू, ग्रे, जो नॉर्मल टोन्स होते हैं वो पहन के, एंड यू कम इन अ कंप्लीटली वाइट लुक, द सूर्या भाई लुक जो कहते हैं ना, हाँ. प्रॉपरली. तो आई केम इन माय बेस्ट पॉसिबल लुक. I mean, was that आई the same मीन after the session या also? आई मीन मतलब of course it is offensive to sense of humor that people are not thinking ki Surya Bhai look is the absolute best possible formal look that one can have. Which I agree, and a lot of people also did not know about Surya Bhai, which I think was even more sadder. कि हाँ, सूर्या अरे आई भाई का वाज. रेफरेंस नहीं पता. हाँ यार वो मतलब अगेन बहुत अनबिलीवेबल लगा था मुझे तो कि ऐसा कैसे संभव है. बट बट ठीक है या यार, वो भी एक कोर मेमोरी है. आई थिंक लॉट ऑफ हाँ पीपल स्टिल रिकॉल कि क्या कपड़ा पहना था. यार वो तो दैट इज अ वेरी स्टैंड आउट लुक फॉर मी. बट हाँ ठीक है चलो उस दिन के बाद आई रियलाइज कि ऐसे लोग अप्रिशिएट नहीं करते. मतलब किसी को आई डोंट नो लाइक पीपल आर वेरी कन्फॉर्मिस्ट दैट वे कि अगर हमको दिमाग में है कि तुम ब्लैक कोट ब्लैक पैंट पहन के आओगे, तुम ब्लैक कोट और ब्लैक पैंट ही पहन के आओ तो ठीक है. मतलब गॉट टू फिट इन. अब आई रिमेम्बर यार कि डाइनिंग एटिकेट वाला सेशन हुआ था इसके जस्ट बाद. एंड उसमें ही हैड one of the instructions we were told is that वो कि if you are एक तो I don't know all of these rules seemed like even the queen would be surprised to hear them. क्वीन भी इससे ज्यादा चिल तरीके से खाती होगी. बट ऐसा बोला कि when you are having soup you have to get the
स्पून टू योर माउथ एंड नॉट योर फेस टू द स्पून। और मुझे बस लग रहा था कि आई एम ड्रेस्ड इन ऑल वाइट क्लोथ्स यार, मतलब हाउ डू यू बटर योर ब्रेड हाँ। प्रॉपरली, ये बट सब। अगर खाना गिर गया सोचो मेरे वाइट कपड़ों हाँ पे, किसी के भी लाइट कलर्ड कपड़ों पे, तो दैट इज इन इट सेल्फ हम्म, अनदर हाँ यार वो मतलब बर्निंग सेशन योर भी, पॉकेट्स। बट वो सेशन में मजा तो आया था। देख, वी आर सिटिंग इन ताज प्रेसिडेंट, कोलाबा में बैठे हैं, 5 कोर्स मील लगाया था हमारे लिए, ऑन विच वी वर टू बी इवैल्यूएटेड कि हम कैसे खाते हैं, हाउ हाँ डू वी ऑर्डर, हाउ डू वी मतलब रिक्वेस्ट द सर्वर टू गिव अस समथिंग। बट प्रॉपर 5 कोर्स मील तो दिया था। हाँ, मजा तो आया था खाना गलत पे तो भी बढ़िया नॉट। था हाँ। हाँ तो ग्रेट, मतलब ग्रेट, ऐसे टेस्ट हमेशा होते रहने चाहिए हाँ, कि बीच बीच किसी में। ताज होटल में बैठ के खाना खाना इज हाँ, व्हाट। रेगुलर इवैल्यूएशन जैसे बने हाँ, रहना चाहिए। हाँ, अग्री। हाँ, बट आई थिंक दिस वाज आवर स्टे इन मुंबई जहाँ पे ये सेशंस हुए थे हमारे। एंड हम्म। देन द नेक्स्ट स्टॉप ऑन द रोड वाज मीठापुर, आई अरे थिंक ना। इसके पहले रिमेम्बर कि थोड़ा सा कुछ ऐसे वो हो गया था मिसकम्युनिकेशन अबाउट कितनी लॉन्ड्री अलाउड है नहीं है, मतलब कोई अच्छा बहुत ही छोटी सी हाँ। ग्लिच थी ऐसे कि हम्म, बट बिकॉज सबने एक सर्टेन वे में प्लान कर लिया था कि हाँ सपोज विल गेट 4 पीसेस ऑफ लॉन्ड्री, पीपल प्लान अकॉर्डिंगली, देन पता चला कि नहीं 2 ही है। बट आई रिमेम्बर कि वन ऑफ माई वेरी क्लोज अच्छा, फ्रेंड्स, 4 पर मतलब इंडिविजुअल लगा था, बट 4 पर रूम था बिकॉज वी आर शेयरिंग, ऐसा कुछ हाँ, था। समथिंग लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट, हम्म, ऐसे वेरी मीगर इशू, but because we are moving location so quickly and people have planned a certain way, तो वो थोड़ा ये हो गया था, मतलब हम्म, it had become a tense situation कि what to do what not to do, and I remember कि one of my very close friends, जिसका किसी ने नहीं सोचा था कि she will be um, the person to go and resolve this incident, she was able to go and convince the hotel हम्म, कि नहीं, अगर आपने ये इनिशियली प्रॉमिस किया तो आपको देना देना चाहिए। एंड पड़ेगा, करेक्ट। हाँ, हाँ, ह्यूज रिलीफ, बाप रे, मतलब इमेजिन लॉन्ड्री बिल कितना आता वहाँ हाँ, पे। हाँ। एंड ये भी कि बहुत लोग गए उसके पहले, किसी ने नहीं किया, बट सबसे अनएक्सपेक्टेड जिससे था उसने कर दिया, तो आई वाज वेरी प्राउड ऑफ हर की। इनसेन। मैंने सेम वेरी हाँ। प्राउड ऑफ हर यार इसके लिए तो। बट हाँ, आई थिंक दैट वाज आल्सो मतलब अ ग्रेट इंसिडेंट, क्रेजी। हम्म। एंड इसके बाद वी वेंट टू जामनगर। इसके बाद वी फ्लू टू जामनगर, जामनगर, which is करेक्ट। the best airport in the world, because you land, the moment you land you can see your car waiting for you outside। ऑटोज खड़े थे लाइन ऑटो पर, खड़े थे लाइन रनवे से। पे हम हाँ, उतरते हैं, ऑटो दिख रहे हैं सामने। हम रनवे पे ही उतरते हैं, हम चल के नॉर्मली जाते हैं, हम 2 स्टेप चलते हैं, देर इज योर कन्वेयर बेल्ट इन फ्रंट ऑफ यू, यू टेक योर लगेज, यू लिटरली टेक 2 more steps and you are out of the airport। हम्म, एंड उफ, मिनिमल डिजाइन पीक, हम्म, ग्रेट एयरपोर्ट। हम्म। वहां से हम चले थे मीठापुर, एंड दैट वाज आल्सो, यू रिमेम्बर दैट जर्नी, वो 6 घंटा वी वर जस्ट ड्राइविंग, और कुछ भी नहीं था, हाँ, इन द मतलब मिडल ऑफ नथिंग। नथिंग, मतलब दोनों साइड पे कुछ नहीं था, कुछ भी दिख नहीं रहा है। एंड दैट वाज सो, मतलब इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू गेट अकस्टम टू दैट कि आप सो रहे हो, आप 1 घंटे 2 घंटे बाद उठ भी रहे हो तो सेम दिख रहा है बाहर, और कुछ भी नहीं है। तो हाँ, एंड देन कुछ भी नहीं है टू टिल व्हेन वी स्टार्टेड नियरिंग मीठापुर, आई रिमेम्बर कि थोड़े सॉल्ट मार्शेस दिख रहे थे, तो वाइट वाइट दिख रहा था दोनों साइड, एंड दैट वाज, मतलब इट वाज लुकिंग लाइक दैट स्नो, तो बहुत अच्छा लग रहा था। देन वी रीच्ड मीठापुर, वी वर पुट अप इन दिस मीठा प्लेस महल। कॉल्ड मीठा महल, हाँ, जो उनका गेस्ट हाउस है टाटा केमिकल्स का। टाटा केमिकल्स का, करेक्ट। तो टाटा केमिकल्स की पूरी फैक्ट्री है, ये टाउनशिप है प्रीटी मच मीठापुर, एंड वही कि दे हैव देयर ओन मैसिव गेस्ट हाउस व्हिच इज वेरी अकिन टू अ कॉलेज हॉस्टल, दे आर कॉल्ड मीठा महल, एंड वी वर पुट अप देयर। उसके बाद आई थिंक मुझे जो याद है, मतलब आई थिंक हमें रूम्स दिए गए थे, एंड वहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक वाटर शॉर्टेज था या ऐसा कुछ था। आई थिंक लोड शेडिंग भी हुआ था 1-2 बार। ये मेरी इनिशियल मेमोरीज है जस्ट एंटरिंग एंड जब हम सेटअप कर रहे हैं। हाँ, हाँ, तो आई रिमेम्बर व्हाट हैड एक्चुअली हैपेंड, तो कपल ऑफ अस वर इन रूम्स ऑफ 3, एंड मीठा महल में साल भर इतनी ऑक्यूपेंसी नहीं रहती, मतलब मे बी couple of people come and go, but the entire thing being booked out at one point seems like that would not be very usual, मतलब I might be wrong, but ऐसा हम्म, लग रहा था देख के जगह को। तो इतने सारे लोग आ गए, एंड couple of, in some rooms there were 3 people in each room, and everyone wants to take a bath। हम्म, अच्छा, ऑल्सो बिकॉज हम इसके पहले जस्ट आई थिंक द्वारकाधीश 4 धाम मंदिर, हम्म, एंड एवरी वन वॉज वेरी, मतलब ऐसे एंथुजियास्टिक टू गो देयर। और मुझे ये भी याद है कि वहाँ पे इतनी कम सिक्योरिटी थी, क्योंकि आई डोंट नो, आई वाज अंडर द इम्प्रेशन कि इतना बड़ा लाइक 4 धाम वाला मंदिर है तो बहुत टाइट सिक्योरिटी होगी, बट एवरी हम्म, वन वॉज फ्रीली अलाउड टू गो इन एंड आउट, देर वॉज वेरी लिटिल चेकिंग देयर। तो दैट्स ऑल्सो समथिंग आई डिस्टिंक्टली रिमेम्बर। तो वापस आके व्हेन एवरीवन वाज ट्राइंग टू गेट रेडी एंड टेकिंग अ बाथ, ऐसे तो जहाँ पे 3 लोग थे रूम में,
आई थिंक, या इवन जहाँ पे 2 लोग थे तो पानी खत्म हो गया और सबको शैम्पू करना है बिकॉज़ द एयर हियर इज़ वेरी सॉल्टी एंड अ, बहुत हाई ह्यूमिडिटी था वहाँ पे। हम्म। तो अब उस चक्कर में पानी खत्म हो गया है। फिर लोगों ने किसी तरह से फिगर आउट करके पानी चालू करवाया। जब तक पानी हाँ। चालू हुआ तब तक लाइट चला गया। तो बिकॉज़ मतलब आई रिमेंबर गेटिंग स्टक बिकॉज़ ऑफ दिस कि मैं नहाने आई वाज़ द थर्ड पर्सन टू गो एंड टू टेक अ बाथ और तब पानी चला गया। ठीक है, फिर जब तक एंड आई हैड टू शैम्पू, फिर जब तक पानी आया तो लाइट चला गया तो आई कुडंट ड्राई माय हेयर माय एंड गॉड। आई रिमेंबर गेटिंग अ हेडेक एट द एंड ऑफ द नाइट बिकॉज़ ऑफ दैट आल्सो। बट हाँ, चलो इसीलिए मुझे ये इंसिडेंट पूरा याद है। मुझे तो, बट बहुत अच्छा था यार मीठापुर का तो। हाँ नहीं इत मतलब वो नाइट भी लीडिंग अप टू इट वो काफी एकदम काला नाइट था। जो लोग, हुँ, पीपल वर गुड एट सिंगिंग, मस्त गाना गा रहे हैं, गिटार बजा रहे हैं, वी डांस्ड आल्सो, रील्स भी शूट की थी आई रिमेम्बर। तो हाँ, वन ऑफ द बेस्ट पार्टीज़ एवर। हाँ, मतलब दिस इज़ एग्ज़ैक्टली द काइंड ऑफ पार्टीज़ दैट आई थिंक मतलब कॉर्पोरेट्स में भी होने चाहिए। तो आई डोंट थिंक दे वर सर्विंग अल्कोहल और एनीथिंग, नहीं नो। नहीं नहीं। हाँ, तो कुछ बट खाना इतना बढ़िया, इतना अच्छा खाना दे रहे थे। नो ऐसे आउटरेजियस ऑपुलेंस इन एनी प्रोग्राम, बट ग्रेट फूड, ग्रेट परफॉर्मेंसेस बाय पीपल हू वी नो ऑलरेडी। हम्म। उनके भी कुछ जो लोग आए थे आए वो थे। उन्होंने भी बहुत अच्छा गाना वाना गाया एंड एवरीथिंग कंक्लूडेड एट अ वेरी रिस्पेक्टेबल आवर ऑल्सो। हाँ। तो बहुत मज़ा आया था इस पार्टी में भी। हम्म। इसके बाद आई थिंक दे टुक अस टू यार आई रिमेम्बर कि इसके बाद हम सब ना अपने अपने ऐसे जस्ट वी ऑल जस्ट वेंट आउट फॉर वॉक्स आफ्टर चेंजिंग हम्म। एंड वेंट अराउंड द सिटी। तो इतना बढ़िया लग रहा था क्योंकि इस जगह में पोल्यूशन वगैरह भी काफ़ी कम होगा आई एम गेसिंग। एंड जो सॉल्ट के हीप्स रखे होते हैं, मार्शेस जिनको कहते हैं, वो एकदम स्नोई माउंटेन्स जैसे लगते हैं। एंड हम्म। व्हेन द मून शाइन्स ऑन देम इट लुक्स अनरियल, मतलब टू गुड, हाँ आई टू गुड। रिमेम्बर। उसके अगले दिन मुझे ये भी याद है कि आर्काइव में गए थे हम, राइट? बीच पे गए थे पहले। अच्छा। फर्स्ट वी वेंट टू द मीठापुर बीच विच इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल। यार मुझे तो इतना उस टाइम पे मन हो रहा था कि मुझे यहाँ पे एक्सटेंड मिल जाए। देर इज़ वन हम्म। जिम इन दिस सिटी और इन दिस टाउनशिप। देर इज़ सच अ ब्यूटिफुल बीच, द रोड्स आर सो गुड, देर इज़ सच अ नाइस टॉय ट्रेन दैट रन्स बैक एंड फोर्थ। इतना मज़ा आ सकता है 3 महीने में, यू कैन फुल्ली ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। वेट लॉस हैक तो था। हाँ, टू हाँ। गुड, टू गुड। उसके बाद दे टुक अस टू द आर्काइव्स। करेक्ट। आर्काइव्स में अगेन नॉट वेरी क्लियर मेमोरीज बट यार आर्काइव्स में मुझे ये तो याद है कि अम, मतलब द ओनली थिंग एकदम डिस्टिंक्टली जो याद है, तो बहुत चीज़ें थी अगेन वेरी नाइस थिंग्स, लेटर्स दैट Mr. J.R.D. Tata had written to a very young boy he had once done an airplane race with. Then some letters that Kalpana Chawla had written to him. बहुत ऐसी चीज़ें थी, मतलब आई थिंक दे हैड ऑल्सो रिक्रिएटेड मिस्टर जे.डी. टाटा's एंटायर ऑफिस स्पेस कि कैसा हुआ करता था बॉम्बे हाउस के टॉप फ्लोर पे। ये सब कुछ था। बट जो विजिटर्स बुक होता है, वो विजिटर्स बुक में दरवाजे के पास छोटा सा विजिटर्स बुक, उसमें एक पेज पे मिस्टर एन चंद्रशेखरन का साइन था। उन्होंने आई एंड थिंक ही हैड लास्ट विजिटेड जस्ट बिफोर अस। yeah, I think he and a couple of people we had visited this place before us, मतलब not directly before us but इस जगह में उनके बाद हम ही आ रहे थे। तो उनका सिग्नेचर भी था उसमें। and तो for those of who you may not know, Mr. N Chandra is the chairman of the entire Tata group. तो quite a big deal to see his signature on the visitors book। तो many people lined up कि हमें अब साइन करना है इस पे कि our sign and his sign will be on the same page. I remember one of our आवर batchmates बैचमेट्स हैड साइंड। had आई signed रिमेम्बर। with a comment there. क्लियरली रिमेम्बर ये तो। बट हाँ, दिस वाज आवर टाइम एट मीठापुर, राइट? मीठापुर में आई थिंक दिस वाज अ वेरी नाइस प्लेजेंट स्टे। हाँ, बहुत ही होलसम था एंड इट वाज अ वेरी नाइस ब्रेक। आई थिंक इससे पहले हम काफ़ी बड़े बड़े टाउन सिटीज़ इन सब में ही थे, तो दिस वाज अ वेरी नाइस ऑफ साइड, वेरी ऑफ बीट लोकेशन, काफ़ी अच्छा लगा था। हाँ, बट आई थिंक फ्रॉम हियर वाया द राजकोट एयरपोर्ट वी हैड फ्लोन डाउन टू मुंबई फॉर आवर लास्ट लेग ऑफ द भारत हम्म, दर्शन ना, हाँ, जहाँ पे हमारे बॉम्बे हाउस के सेशंस होने थे। हाँ, कुछ अगेन मतलब पहले जो स्पीकर सेशंस हुए थे जैसे टीएमटीसी में, आई थिंक अ वेरी सिमिलर लाइन में बॉम्बे हाउस में भी होने हाँ। थे। जहाँ पे आई रिमेम्बर द सीईओ ऑफ टाटा ट्रस्ट सेड कम, टीसीपीएल व्हिच इज टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, उनके सीईओ आए थे। टाटा कैपिटल टाटा कैपिटल के सीईओ आए थे, मिस्टर हरीश भट्ट आए थे, आए थे। करेक्ट। amongst other people। Again, this is just
who we top of can our head जितना मुझे याद है. remember. हाँ. Um, But just for some context, Bombay House is the bastion of Tata Group. I think वहाँ पे all the big shots of all the Tata Group companies sit in one place, and एकदम मतलब the street that where it is located is also so well guarded and has to be. And I remember कि वहाँ पे कोई मतलब not a single person can walk into the building without an invite or an ID card. But it is always open for stray animals. Any animal that walks in, the gates are always open. They are well fed, well covered, always given a place to stay. And I remember Mr. Ratan Tata's dogs were also there just outside the Tata, at the entrance of the Tata Experience Center. And हाँ I remember मतलब playing with them a bit. हाँ, तो वही बॉम्बे हाउस के अंदर है टाटा एक्सपीरियंस सेंटर, उसके जस्ट बाहर हाँ, बहुत सारे एंट्रेंस पे. डॉग्स होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा खाना भी आता है। हाँ. आई हर्ड मतलब पीपल से कि ताज से खाना आता है उनका। हम्म. एंड वही मतलब नीडलेस टू से कि दे ट्रीटेड वेरी नाइसली, किसी को ठंड लगी होती है तो कवर देते हैं, करता है. कवर करते हैं, वेट्स वगैरह आते हैं वेन एवर नीडेड। But that I was not very surprised to see because I've been to the Bombay House once before for my Tata Imagination Challenge finals. तो हम्म. तभी तब आई वॉज वेरी सरप्राइज जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था कि अरे मतलब हम जहाँ एंड उनको फ्री मूवमेंट है, मतलब वो कहाँ तक भी वो जाना चाहे जा सकते वो हैं. जाते नहीं है स्टेट्स के ऊपर, बट वो जा सकते हैं इफ दे वांट टू। तो मतलब आई वॉज अ लिटिल बिट स्कैर्ड ऑल्सो इनिशियली कि हाँ, बट हाँ यार, इसके अलावा आई रिमेम्बर फ्रॉम दिस लेग ऑफ द ट्रिप की um, तो multiple ऐसे speakers were coming, speaking and leaving, and we were in this one मतलब hall sort of a um, place. And I remember कि Mr. Sunil D'Souza, who is the MD of Tata Consumer Products, which has all of these मतलब which is the FMCG wing of the Tata Group in a way. um, ये सारे सोलफुल, आइकॉनिक ब्रांड्स लाइक हाँ, टाटा टी. टाटा टी, टाटा सॉल्ट, ये सब जिस कंपनी के अंडर आता है उनके जो एमडी हैं, तो उनका सेशन होने वाला था। एंड आई रिमेम्बर वो शायद थोड़ा सा पहले आ गए थे, मतलब ही वॉकड इन सम 2 minutes अर्ली, एंड आई वाज हैविंग वाटर, तो आई हैड केप्ट माय फोन ऑन ऑन द फ्रंट रो, एंड आई हैड गॉन टू हैव वाटर, बट आई डिड नॉट वांट टू टेक माय प्लेस बैक इन द फर्स्ट सीट, क्योंकि फिर वही कि वो बोल रहे हैं डिस्टर्ब होगा करके, तो मैं थोड़ा पीछे बैठी। ठीक है, then he also comes in, he keeps his things on one chair, and he gives his entire session, speaks, um, काफी एंगेजिंग, लोग क्वेश्चन पूछते हैं उनको, वो आंसर करते हैं, सब कुछ हो जाता है। then he walks out। अब when once he has left, I go to take my phone from the chair and I say कि फोन नहीं है, बट एक उधर उसी लाइन में लास्ट उस पे एक और फोन है which is not mine। तो आई एम आस्किंग एवरीवन फ्रैंटिकली कि मेरा फोन किसने लिया, एंड बाय दिस टाइम आई वाज थिंकिंग कि दिस इज अ प्रैंक ओनली विद सम ऑफ मतलब विद सम बैचमेट्स बैचमेट वगैरह के इज टाइम. डूइंग। क्योंकि वही है कि टीएमडीसी के टाइम पे भी वो लोग ऐसे मेरा नाम नेम कार्ड पीछे होता था, बट वो फर्स्ट बेंच पे लेके आ जाते थे, तो मुझे लगा कि इन्हीं में से किसी ने पक्का मेरा फोन लिया है। तो आई हैव गॉन टू देम, आई फुल्ली मतलब ऐसे थ्रेटन देम कि वापस करो मेरा फोन, ये वो, वेयर इज इट, टेल मी एवरीथिंग, एंड एवरीवनस लाइक नो नो ब्रो वी हैवंट टेकन। एंड देन आई थिंक आई रियलाइज्ड कि अच्छा नहीं, देन किसी ने बोला कि जस्ट आस्क कि उनका मतलब एमडी का होगा। एंड यार, तो फॉर कॉन्टेक्स्ट आई यूज टू हैव एन आईफोन 6s, ये हम 2023 की बात कर बात रहे कर हैं। रहा है. बाय 2023 दैट फोन इज 8 to 9 years old ऑलरेडी। तो क्लियरली, एंड मुझे तभी इतना लग रहा था कि श्योरली दिस इज अ प्रैंक, क्योंकि बहुत मुझे लोग ऐसे ताने मारते थे कि बाय नाउ आई शुड नेम माय फोन, इट्स ऑलमोस्ट लाइक माय चाइल्ड, एंड इतना मतलब इतना ह्यूमनाइज हो ही गया है, इतना इसकी तरफ हमदर्दी है कि इसको चेंज नहीं करना है। तो बहुत मतलब बहुत मजाक उड़ाते थे। बट देन आई टुक दैट चांस, आई वेंट टू मिस्टर सुनील एंड आई आस्क्ड हिम कि इज दिस योर फोन, बिकॉज आई थिंक हमारा एक्सचेंज हो गया होगा इन दैट केस। एंड ही वाज वेरी courteous and he said कि या मतलब थैंक यू Oh my सो मच, God. ये एक्सचेंज हो गया। बट अगेन पीक वैलिडेशन कि इफ द एमडी ऑफ टीसीपीएल हैज द सेम फोन एज मी, तो iPhone 6s, an almost a हाँ decade-year-old phone. हाँ, बट अगेन द मोस्ट परफेक्ट फोन टू एवर हैव बिन रिलीज्ड। तो बहुत मुझे मतलब इतना उस दिन विंडिकेटेड फील हुआ था, क्योंकि लोग क्या क्या कहते हैं यार कि टिम को आके पर्सनली मांग लेगा, तब तक तो मेरा फोन चलाओगी। बट आई रिमेम्बर एवरीवन वाज वेरी मतलब दैट डे एवरीवन वाज वेरी शॉक्ड कि बाप रे, अगर वो भी 6s चला रहे हैं तो इट्स टोटली ओके इफ आई यूज वन। Fair enough. But I think
to cap it off, इन्हीं सेशंस के एंड में हमें हमारे फर्स्ट इंटरलोकेशन मेल्स आए थे, हम्म। एंड वी ऑल गॉट टू नो वेयर वी वर टू हेड टू. हाँ, आई स्टिल रिमेम्बर वही इन एंड अराउंड बॉम्बे हाउस में सबको। काफी फ्रैंटिकली एक वन आफ्टर वन द मेल्स वर रोलिंग आउट, एंड वी वर हाँ जस्ट रिफ्रेशिंग आवर इनबॉक्सेस कि हमारा कब आएगा, कहाँ आएगा. हाँ, एंड आई रिमेम्बर द एनर्जी इन दैट रूम, द एंजाइटी, द एक्साइटमेंट, एवरीथिंग कि क्योंकि इसके पहले हमें जब हमने ये पूरा लेग टीएमटीसी में स्टार्ट किया था, वी हैड बीन आस्क्ड टू फिल अ फॉर्म ऑफ Hmm. व्हाट काइंड ऑफ रोल्स वी आर लुकिंग टू डू, एंड इट वाज अ वेरी ब्रॉड फॉर्म, मतलब बहुत ब्रॉडली बहुत क्वेश्चंस थे उसमें, जहाँ पे यू हैड टू टॉक अबाउट व्हाट यू लाइक टू डू, व्हाट यू एंजॉय डूइंग, व्हाट आर सम थिंग्स यू Hmm. वांट टू डू, एंड यू कैन कीप इट वेरी ब्रॉड आल्सो कि आई जस्ट वांट टू लीड a team, and any stint where I have to lead a team is fine with me. और you can also give very pinpointed answers कि मुझे exactly टाइटन में फास्ट ट्रैक टीम के अंदर प्रोडक्ट मैनेजमेंट का रोल करना है, तो दैट वाज Hmm. अप टू अस हाउएवर वी फिल्ड द फॉर्म. बट वो कि everyone had filled these forms, some of them had filled it with very much मतलब ऐसे thought and Hmm. effort put into it, कुछ लोगों ने मतलब ब्रॉडली ही भरा था, बट वही कि इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अब उस एग्जाम का रिजल्ट आ रहा है, तो बहुत palpable एनर्जी थी उस रूम में. Hmm. But yeah, after this we got our first stints and were to head over to those locations wherever we were given. But that we will cover in the next Next video. video. Uh, so bye bye. Bye bye.